اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں. سامعین ناظرین، بات ہو رہی ہے سیاست پر، بات ہو رہی ہے حکومت پر. پارلیمنٹ کے الیکشن تو ہو گئے، کیئر ٹیکر بھی بن گئے، اور اب جو ہے پھر دوبارہ جو ہے ایک سرخ بلاک ہے، ایک نیلا بلاک ہے. اب نیلے والے جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور پڑتے جا رہے ہیں، چونکہ دھوپ نکلی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتے. ریڈ بلاک جو ہے وہ تھوڑا تکڑا ہوتا جا رہا ہے، اور ریڈ بلاک کی حکومت بنانے کی طرف جو ہے ریڈ بلاک والے لگے ہوئے ہیں جو موجودہ وزیر اعظم ہیں. تو ہم نے کہا یہ چیزیں جاننے کے لیے جو ہے ایک سیاستدان ہیں، دانشور ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، لبنہ الہی صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں. لبنہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز. جی السلام علیکم، اور سب سننے والوں کی خدمت میں سلام. جی رائے صاحب. لبنہ، میں نے چھوٹی سی تمہید باندھ دی ہے اور آپ انالائز بھی کرتی رہتی ہیں، ڈیفینیٹ آپ خبروں پر نظر رکھتی ہیں. یہ جو بھی ریڈ بلاک، سرخ بلاک، نیلا بلاک کا جو ہو رہا ہے، نیلا بلاک تھوڑا سا کمزور ہے، بندے بھی چھوڑ رہے ہیں، اور لاسٹ لوکے صاحب کے لیے بھی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. تو سیاستدان کے طور پر آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ میں سیاستدان کے طور پہ جو نہیں ہے، اس الیکشن کے ریزلٹ کو ایک سیاسی المیہ سمجھتا ہوں، اور وہ سیاسی ایسے المیہ کہ کا یہ بات سمجھ، سیاسی طرف وضاحت تھوڑی سی کر دے. سیاسی المیہ کے بنیا دیتا نہیں تو پورا پورا تول نا، کیونکہ کیونکہ آپ ایک اردو سائڈ پہ پڑھاتی ہیں نا تو موٹے موٹے لفظ استعمال کرتی ہیں. میری عام زبان ہے، یہ موٹے موٹے نہیں ہے، لیکن اینی ہو میں کوشش کروں گی کہ ایزی الفاظ استعمال کروں. رائے صاحب، آج تک ہوا نہیں کہ یہ کوئی 5 نکاتی جو بائیں بازو کی جو بلاک ہے، جس کو آپ ریڈ بلاک کہتے ہیں، کہ اس میں 5-6 پارٹیاں اکٹھی ہوں نا. عموماً 2-3 ہوتی ہیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن آج تک مطلب پچھلے 50 سالوں میں یہ رزلٹ کبھی بھی نہیں، جس طرح کا نا چوچو کا مربع. کیونکہ جیسے ریڈ بلاک میں ہونے کے باوجود سوشل ڈیموکریٹ جو تارکین وطن کے بارے میں اپنے الزامات، بیانات دیتی ہے، اس کا ذرا موازنہ ایزلی کر کے دیکھ سکے. ابھی انہوں نے پچھلے دنوں ایک دیا تھا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے، اگر ہمارے سے کسی نے الحاق کر کے حکومت بنانی ہے، کہ وہ مذہبی طور پہ کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ کرے نا. ڈیڈی کیل ذرا تھوڑی ڈپلومیسی سے کام لے رہی ہے کہ جی ہر انسان کو اس معاشرے میں رہنے کا حق ہے. یہ تو جی ہمیں پتہ ہے، آئین کہتا ہے. تو یہ آگے بھی پچھلے الیکشن میں یا اس سے الیکشن میں یاد ہوگا آپ کو کہ ایس ایف نے حکومت بنائی تھی سوشل ڈیموکریٹ کی، پھر ان کو ان کی پالیسیز کے مطابق وارا نہیں کرتی تھی تو انہوں نے چھوڑ دی تھی. اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت بنا بھی لیں تو یہ 4 سال نہیں کاٹے گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، کیونکہ اتنی مختلف ترجیحات ہیں. جیسے انہی لسٹ کو لے لیں، ایس ایف کو لے لیں، سوشل ڈیموکریٹ کو لے لیں، تو شاید ابھی وقتی طور پہ بن جائے، کیونکہ ان پہ آئینی ذمہ داری ہے. جو لوگ چنے جاتے ہیں، جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے کے اندر، اس کا میکسیمم بھی ہے، مجھے نہیں اب یاد 2 مہینے یا 3 مہینے ہے، کہ انہوں نے حکومت بنانی ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہ مجھے یہ پسند ہے یا نہیں پسند نا. تو اب یہ جتنی دفعہ کوئین کے پاس جاتے ہیں تو سوری اب کوئین نہیں رہی، کیا کنگ کے پاس جاتے ہیں، فضائی کے پاس، تو اس میں وہ اپنے مطالبات لکھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے، پھر وہ اس کو پڑھتا ہے، پھر کوئی دوسرا جاتا ہے، یہ جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ٹرنول پورا ہونے سے پہلے دوبارہ یہ الیکشن ہوگا. یہ چل نہیں سکتی، یہ بن بھی جائے تو چل نہیں سکے گی. یہ چو کا مربع ہے، اور میں نے بالکل بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے یہ سیاسی المی ہے، کیونکہ الیکشن ہونے پہ بہت پیسے لگتے ہیں. آپ کی سوچ ہے کتنے پیسے لگتے ہیں. پھر جو لوگ جاتے ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں، مجھے اب یاد نہیں کتنا عرصہ ہوتا ہے، انہیں کچھ پیسے ویسے دیتے ہیں، وہ بھی ٹیکس پیئر کی طرف سے جاتے ہیں. جبکہ ایک طرف سے جو پینشن والے ہیں ان کی کٹوتی ہو رہی ہے، کھانا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تیل مہنگا ہوتا جا رہا ہے. تو المیہ ہی میں اس کو کہوں گی نا کہ یہ المیہ ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں اس کا، ڈیسک فول کے پارٹی نے ابھی میرے خیال 2-3 دن پہلے کہا ہے کہ جو حلال گوشت ہے اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ اضافی ٹیکس لگایا جائے. اور اسی طرح جو ہمارے مسلمانوں کے سکولز ہیں، جبکہ وہ ایک قانونی سکول ہے، میں اس کے حق میں نہیں کہ آپ الگ سکول بنائیں، لیکن ہم یہاں بات سیاسی اس کی کر رہے ہیں. تو وہ ایک لا ہے فری سکولوں کے بارے میں، جس میں وہ بنا سکتے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، پتہ نہیں اور کس کے ہیں. تو مسلمان کے وہ مطلب اس کو ایک بڑا ابھار کے کر رہے ہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ
इनिस लिस्ट जो नहीं है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई हुई है, वो इमिग्रेंट्स के मामले में काफ़ी डटे रहेंगे। उनको गैर मुल्की ने वोट भी दिए हैं, तो अगर बन भी गई, मैं बार-बार कह रही हूँ, अगर बन भी गई, तो ये 4 साल नहीं काटेगी, सवाल ही नहीं पैदा होगा। लेकिन लुबना सियासी पंडित कहते हैं कि ये रेड ब्लॉक की तरफ जाएगी, अब रेड ब्लॉक के साथ ही मिलकर ये हुकूमत बनाएगी मेते, अब ब्लू ब्लॉक की तरफ शायद ना जाए। नहीं, ब्लू ब्लॉक उसको खुद ही रखना चाहते हैं, इसके जाने की क्या बात होती है? मतलब उनकी जो तरजीहात है वो इससे बहुत मुख्तलिफ है। और जैसे तो कि लास्ट क्योंकि ने तो ब्लू ब्लॉक से हाथ उठा लिए हैं। हाँ, ज़ाहिर है कि क्योंकि लास्ट लुके की पार्टी में और उससे सिंपैथी रखने में अब गैर मुल्की बढ़ रहे हैं। वो गैर मुल्की जो नहीं है वो टैलेंटेड फुल भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेती, क्योंकि ये तो वक्त ही बताता है क्या है ना। और शायद जब वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, जब उसके पास जब वजीर खारजा था, तो उसकी कुछ आंखें खुली हैं। मैं उसको बहुत अरसे से जानती हूँ, 30-35 साल से जानती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि लास्ट लुके के रवैये में वो अक्सर समझाता भी है कि भी हम गैर मुल्कियों के खिलाफ नहीं चल सकते, ये हमारे मुल्क में ये करते हैं, वो करते हैं, फिर उसने दुनिया देखी है। और आप जैसा आम सी बात है कि लोगों से मिलने-जुलने की के बाद आपके दिमाग में वुसअत आती है। क्योंकि ये जो डेनमार्क में सियासतदान है, क्योंकि ये अपनी स्कैंडिनेविया को ये अपने आप से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका ख्याल है कि पूरी दुनिया में ज़्यादती हो रही है, जबकि इन इन कि अपने मुल्क में हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ होती हैं डेली बेसिस पे। शायद उसको समझ आई है, लेकिन है लोग कि ना बात करते हैं कोई हमारा जो पाकिस्तानी नसाद गैर मुल्की होता है, सियासतदान होता है, वो जब हुँ, भी बात करते हैं, जब तक डैनिश पीपल्स पार्टी का नाम ना लें तो बात बनती नहीं। जब डैनिश पीपल्स पार्टी बात करती है तो उसको लोग वोट देते हैं। हुँ। तो जब मुसलमान बात करते हैं तो मुसलमान फिर क्यों नहीं लीडर को वोट देते? मैं समझी नहीं आपका सवाल। आप देख रहे हैं डैनिश पीपल्स पार्टी वालों को तो वोट मिले, जी, जी, मिले। तो पाकिस्तानी 5 कैंडिडेट थे, वो भी पांचों के पांचों अब मुसलमान हैं। उनको वोट नहीं मिले तो सबसे कम वोट डाले जो कम्युनिटी ने, इतने वोट नहीं डाले, एक मेंबर नहीं बना सकी ये कम्युनिटी। तो बातें तो हम मेरे से मेरे सारे ही करते हैं। राय साहब, कभी भी कोई मेंबर नहीं बनेगा जब तक आप उसकी पार्टी को मतलब ये माज़रत के साथ अगर किसी को बुरी बात लगे, मैं बार-बार बाआवाज़ कहती हूँ कि आप पार्टी की सियासत को समझें। आप किसी बंदे या बंदी को इसलिए ना वोट दें कि वो वाईएक्सएल है। तो ये तो बड़ी-सी बात है, क्योंकि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, इक्का-दुक्का छोड़ के लोगों की अपनी नेटवर्किंग पे आए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि अगर किसी को जिसने जैसे किसी ने किसी पार्टी को वोट दिया है, उसमें एक पाकिस्तानी है जी, उसको दे दिया। आप जाके तज्ज़िया निगार किसी को भेजें, उससे बताएँ कि ये पार्टी इसका मैनिफेस्टो क्या है, उसको नहीं पता होगा। ये हमारी सियासी कमज़ोरी है कि आप जिस मर्ज़ी को वोट दें, लेकिन यार कम से कम अपनी आपको पता तो होना चाहिए कि वो पार्टी क्या है। दूसरा, मैंने बहुत कम अपने अ, जो गैर मुल्की कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी पार्टी को हों, वो अपने ऊपर वाजिब समझते हैं डेस्क खोल के पार्टी का जवाब देना। मतलब उन्होंने तो वो तो जो बकवास करते हैं सो करते हैं, ये उसका जवाब देने बैठ जाते हैं। मुझे इस चीज़ का फकदान लगता है इनकी सियासी कैरियर में कि ये करना क्या चाहते हैं। अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को ज़रूर काम करें, लेकिन ये करना हमारे लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं कि हम इनको वोट दें। मुझे मैंने सबको फॉलो किया है। मुझे नहीं किसी को है कि उसने कहा है। हाँ, कासिम ने गालिबन कहा था कुछ ये मसाजिद और इस तरह की चीज़ों के बारे में। लेकिन मैंने किसी बाकी किसी को सुना ही नहीं कि भी वो सिर्फ यही है जी, हमें वोट दें, हमें वोट दें। कोई कहता है जी कि जो नहीं है हमें एक क्या कहते हैं, एक ऐसे मर्द या औरत की ज़रूरत है कि जो बड़ी हौसले के साथ, हिकमत के साथ हमारे मसाइल आगे जाए। हमें तो ये जो नहीं, ना औरत कार्ड चाहिए, ना जवान कार्ड चाहिए या पढ़ाई कार्ड चाहिए। मुझे तो नहीं कम से कम चाहिए। मुझे वो बंदा या बंदी चाहिए कि जो जिसका अपने लोगों के लिए जो मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं। और मैं मतलब मैं ये अपने तजुर्बात की रोशनी में कहूँगी कि अपने मज़हब का झंडा लेके किसी पार्टी में मत जाएँ।
इसको ज़ेर बहस ही ना लाएँ। आपको एक आईनी हक है, आप बहस क्यों करते हैं? ये कहना जी मुसलमानों को हक है, यस, आइन में लिखा है, हक है, गो फॉर दैट। आप प्रोवोक मत करें ये कह के कि जी मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं अपने मज़हब का नाम देके ना, इसकी आप इसको हिकमत के तहत आप कह के जी हमारा तो हक है, अभी तुम फिर जाओ आइन को बदलो। जब आइन एक को हक देता है, मेरा तो हमेशा हर डिबेट में जब मुझे किसी जगह बुलाते हैं, मैं यही कहती हूँ कि जी फिर आइन को चेंज करो। मेरा हक खत्म करने के लिए, मेरी मस्जिद का हक, मेरी नमाज का हक खत्म करने के लिए आपको आइन चेंज करना पड़ेगा, गो फॉर दैट। ये जो कि कभी हो नहीं सकता। तो मैं लुबना अफ़सोस ही देखे कर ना कि सकती हूँ। इस हुकूमत ने डैनिश नेशनैलिटी दी, इस हुकूमत ने पासपोर्ट दिए, तो लेकिन इस टाइटल को बंदा इस्तेमाल ना करे जी मैं कोई बात गलत करूंगा, जुर्म करूंगा तो मुझे कोई निकालेगा नहीं चूंकि मेरे पास डैनिश पासपोर्ट है। तो जब ये प्ली लेने की कोशिश करते हैं तो ये फिर कानून तो सख्त बनाएंगे। ऐसा देखें, हमने इनको मुझे वो वक़्त याद है कि मुझे अक्सर फ़ोन आती थी किसी अंकल की। आप आपको याद है पीआई की फ्लाइट नहीं सॉरी संडे को आती थी। तो मुझे किसी न किसी अंकल आंटी की फ़ोन आती थी, वो पुरानी बातें हैं कि बेटा हमारे साथ सोशल के दफ्तर जाओ, हमारा दामाद या बहू आ रही है, तो उसको मतलब सोशल शुरू करवानी है। आप अपने गिर्द आप भी पुराने लोगों में देखेंगे। तो मतलब इस मुल्क को कुछ लोगों ने, तारकीन वतन ने इतना निचोड़ा है और इनको सिखाया है। मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे किसी की कुछ कपड़े थे, वो उन्होंने ज़ब्त कर लिए थे। वो बेचारी आंटी मुझे लेके गईं तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी खातून भी थी। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। वो कस्टम के लिए काम करती थी। बड़ी परेशान सी लगी तो मैंने उनसे पूछा कि मैं तो इनकी तर्जुमानी के लिए आई हूँ, आप कौन आई हैं? मतलब आप क्या कर रही हैं? उन्होंने आगे से उस खातून ने कहा कि जी मेरा काम है उसकी वर्थ लगानी, जो भी आता है ना पाकिस्तान से। तो मैंने कहा अच्छा तो आपने क्या वर्थ लगाई है? तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो कहती है देखिए ये ना ये ज़री का काम है, ये तिल्ले का काम है, ये मशीन का काम है, ये कढ़ाई है, तो ये इस कैटेगरी में आता है, ये इस कैटेगरी में आता है, ये इस कैटेगरी में आता है। बताइए मैं क्या करूँ आप? इसी तरह टैक्स के डिपार्टमेंट में लोग हैं। इसी तरह जो नहीं है क्या कहते हैं पुलिस के महकमे में लोग हैं, जो ये समझते हैं कि वो अपने इन लोगों को प्लीज़ करके उनकी तरक्कियाँ हो जाएँगी। वो आँख नहीं मिलाते कि उनके पास जो अ, ओहदा है या जो कुछ भी है, वो उनसे छीन जाएगा। तो जब आपकी ये नेचर है कि आपने अपने हक की बात करें, अपने काम की बात करें, लीला ये प्लीज़ करना छोड़ दें। क्योंकि डेंशो की ये नेचर है, जितना आप प्लीज़ करेंगे, वो उतना ही आपके ऊपर जो नहीं वो एक उनकी हर कौम की एक ज़हनियत होती है ना, आपके पास एजुकेशन है, अपनी एजुकेशन के मुताबिक करें, वफ़ादारियाँ ना करें, वफादारियां ना करें। चलें लुबना ये बात वफ़ादारियाँ तो ना करें। चलती रहेगी। आपको याद है कि हर पार्टी तरक्की करती है। आपको दौर याद होगा ग्लीस्टोप का, कितने जी, जी। मैंडेट थे उनके पास, पिया जी, ख्यास को जी। कितनी पॉपुलर थी। तो जी, डीएफ जी। की जो भी लीडरशिप आती है तो फिर इसी तरह होता है, टाइम के साथ हर चीज़ तब्दील होती रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम हर वक्त करते हैं हमारा ये काम नहीं होता, हमारे लिए फलां ये कर गया, हमारे लिए कमून में ये हो गया, हमारे लिए पार्लियामेंट में ये हो गया, फलां फलां ब्ला ब्ला। तो जब आपके पास वोट का हक है, जिस वोट से आपने तब्दीलियां लानी है, वो वोट आप कास्ट ही नहीं करते। भाई साहब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। ब्लोगस गेट के पास ना 90% हैंडीकैप स्किल्ड है गाड़ियों में। 7,000 क्राउन की वो बिकती है या 9 की अब होगी। हैंडीकैप स्किल्ड जो नहीं कि मैं ये नहीं करता हूँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक इलाके में इतने परसेंट लोग वो इतने मजदूर हों कि उनको हैंडीकैप स्किल चाहिए। किसी ना किसी ने तो बना के दी होगी ना उन्हें। ये थोड़ी सी वजाहत करें ताकि लोगों को बात समझ आए। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आप ये देखें कि डेनिश लोग अक्सर चिढ़ खाते हैं। ये एक घर में जो नहीं है, ये 2 लोग एक चार्जर नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो डेनिश लोग जैसे कि चिढ़ खाते हैं उससे पेंशन से ना बहुत ही ज़्यादा लोग काम करना पसंद करते हैं। मैं कितने लोगों को मिलती हूँ, वो मेरे से पूछते हैं जी पेंशन लेने का क्या तरीका है? वो खासकर जो ख़वातीन हैं, वो समझती हैं कि मतलब उनके लिए बस क्या जी क्या करना है जी पेंशन ले लें। उनके बच्चे कहते हैं क्या करें आंटी जी हमारी अम्मी की पेंशन कैसी हो जाए? अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मुसलमान है। हैं जी?
क्या कहते हैं? میں نے کہا الحمدللہ مسلمان بھی ہیں. ہاں، تو مجھے ایک بچی تھی، مجھے افسوس بھی ہوا، اس سے میں نے سخت بات کی ہے، تو اس کی ماں نے کبھی کام نہیں کیا تھا، تو ایک دن مجھے کہتی ہے یہ پینشن یہ جو نہیں ہے، تو گفتگو ہو رہی تو ذرا وہ تھوڑی جذباتی ہوگی، تو کہتی ہے نہیں یہ تو ہمارا حق ہے. وہاں پہ مجھے کہنے پڑا کہ آپ کی اماں نے تو 5 کراؤن ہی دیے، کیسے حق کیسے ہو گیا؟ حق کیسے ہو گیا؟ یہ کڑوی باتیں ہیں، لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، لیکن ہم نے ان لوگوں کو اتنا ایج پہ کنارے تک لے کے گئے کہ پھٹ پڑے ہیں، ان کو یہی کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ اتنا ہائی فیصد ہے غیر ملکیوں کا جن کی جو فلسطینی ہیں یا جو وار زون سے آئے ہیں، ان کے میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن ہمارے میں سے تو کوئی بھی وار زون سے نہیں آیا، کوئی بھی مہاجر کے کیمپ سے نہیں آیا. کیوں ہمیں شوق ہے اتنی پینشن کا؟ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو ہے، جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہیں، وہ بیچارے بیٹھ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ان کی ہارٹ کی پرابلمز ہیں، اور لیکن یہ اس طرح کے بہت سارے ایگزامپلز ہیں. جب بات کرو تو لوگوں کو برا لگتا ہے. لبنا یہ اسی ساری طرح جو باتیں نئے اپنی جگہ پاکستانی آ رہے درست ہیں ہیں، جن کو لیکن ٹیکس سوال پہ یہ پیدا آپ ہوتا ہے کہ جب سیاسی شعور پیدا نہیں ہوگا، ہم لوگ ڈیمانڈنگ زیادہ ہیں، ہر چیز پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم پریکٹیکلی ہوتے نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، بات پھر بھی آتی، چونکہ یہ تازہ تازہ الیکشن ہوئے ہیں اور ابھی تک حکومت بھی نہیں بنی، تو پھر الیکشن کی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، تو پھر کس نے جی جی. لڑنا ہے، کس نے لڑنا ہے. اس طرح لوگوں نے ابھی اپنے وہ جو ہے پوسٹر بھی سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا. لیکن راجہ صاحب آپ کسی بھی انسان کی زندگی میں الیکشن لڑنا ایک مڈ ٹرم چیز ہے، ایک مڈ ٹرم چیز ہے. آپ الیکشن صرف الیکشن لڑنے سے اپنا سیاسی کیریئر نہیں بلڈ کر سکتے. بلڈ نہیں ہوتا، کیونکہ بطور سیاستدان آپ ایک بہت اتنی چھوٹی اکائی ہوتے ہیں. پھر آپ کہیں گے آپ وہ جو نہیں ہے بھاری بھاری الفاظ بول رہی ہیں، آپ سسٹم میں اپنی پارٹی میں اتنی چھوٹی اکائی ہوتے ہیں. تو جب تک آپ نے اپنی پارٹی کو اپنا ہم مزاج نہیں بنایا، آپ مجھے بتائیں تو کیوں آپ کی بات سنے گا؟ کوئی کیوں آپ کی بات سنے گا؟ کہ لبنا بیسیکل چلیں، آپ ساری بچپن سے سیاست کر رہی ہیں اور آپ کی جو پہچان ہے، جو آپ کی اٹھان ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. تو بھٹو مرحوم کی جو ہے وہ سالگرہ تھی، اس پر آپ نے کچھ نہیں کہا. پی آئی وہ لا کر آئے، وہ لے کے آئے، وہ بہت کچھ انہوں نے دیا، ایمبیسی انہوں نے دیا. تو بھٹو صاحب جیسا ایک ہی لفظ ہے کہ انہوں نے جو جنگ شروع کی تھی، ان جیسا کوئی لیڈر دوبارہ نہیں آئے گا. انہوں نے جو ایک جنگ شروع کی تھی اسلامک بلاک بنانے کی، کہیں نہ کہیں ایران اس کو لے کے آگے بڑھا تھا. وہ بہت دور اندیشی سے کام لیتے تھے. ان کو احساس اس وقت، کتنے سال پرانی کی بات ہے، میں تو چھوٹی سی ہوں گی، مطلب میری ان سے جو ذاتی ملاقات پہلی دفعہ ہوئی تھی وہ 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی. وہ فرانس اسلحہ لینے جا رہے تھے، وہیں پہ پھر بات ہوئی. پاکستان اس وقت اس کو کونسلیٹ کرتے تھے، پاکستان امبیسی کی، پی آئی اے کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے کی. تو یعنی اس وقت انہیں پتا تھا کہ امریکہ کیا کرنے جا رہا ہے. اور پھر جو ہے کہ اگر آپ غور کریں، جتنے بھی اسلامی رہنما تقریباً آلموسٹ اس کانفرنس میں، جو اسلامک کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں، ان سب کو امریکہ کے ہی ذریعے موت کا نشانہ بنایا گیا. تو بھٹو صاحب کی تو جو ہے، بھٹو صاحب نے پاکستان کو پہلا آئین دیا، جس آئین کے لیے آج دوسری پارٹیاں لڑ رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کی میرے دل میں بہت جگہ ہے، محترمہ کی بھی ہے، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. میری ینگ ایج میں میرا وہ بہت بڑا آئیڈیل تھی. میرے ان کے ساتھ قریبی مراسم تھے پارٹی کے علاوہ، اور آج بھی جو نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ ان دونوں باپ بیٹی کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، یہی کہوں گے. آخری سوال آپ سے ہے، آپ جی سیاستدان بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، پارٹی کی ممبر بھی ہیں، ڈینس سیاست بھی کرتی ہیں، اسکول ٹیچر بھی ہیں. تو یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں تو اردو کا فقرہ، یہ اونٹ کس طرف بیٹھے گا؟ کیا اونٹ غیر کس کروٹ ملکیوں میں بیٹھے کوئی گا؟ تبدیلی آئے گی؟ کس میں؟ غیر ملکیوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں رائے صاحب، غیر ملکیوں کی تبدیلی آئے گی اگر یہ اپنے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط
कहना सीख लें। जैसे मैंने पेंशन की बात की है, तो हाँ, है ना, ये फैक्ट है, जाओ उसको पढ़ो, अपने लोगों से बात करो कि भी क्या ये इस तरह के मसाइल आ रहे हैं। ये जो मैंने आपको पार्किंग की बात की है, ये सच है ना? क्योंकि ये इसका मैं मुवाजना उस चीज से करूंगी, जैसे पाकिस्तान में बहुत लोग कहते हैं जी ये होता है वो होता है, लेकिन मैं चाइना मार्केट के करीब रहती हूँ। मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ, मेरी 3 बहनें, 3 भाभियाँ, अम्मी जब जिंदा थी, तो कपड़े-वपड़े चाइना मार्केट से लेने होते थे। मैं सिर्फ इनको कहती थी मुझे कार्बन वाली रसीद बना के दो। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप कपड़ा खरीदते हैं तो वो एक छोटे से कार्ड के पीछे ना उनका जो ज़ाती कार्ड होता है। तो कहता है ना आपको क्या फ़ायदा है? मैंने कहा है ना मुझे फ़ायदा। मेरी ये बात पूरी चाइना मार्केट में मशहूर थी कि मैंने ऐसे पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया कि आपको इस चीज़ के पैसे टैक्स देना पड़े। जिसमें वो नहीं, नहीं ये वो फलाना-ढिमकाना, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। फिर मेरा ख़्याल उसको कहते हैं कुंडी लगाना, वो बिजली की जो आज से कुछ साल पहले लगती थी। किसकी कोशिश नहीं होती थी कि वो लगे। तो जब लोग ठीक होते हैं, किसी लीडर के ठीक होने से सर जी माशरा ठीक नहीं होता। जब अवाम ठीक होती है, अवाम अपना मुहासबा करती है, तो ही वो मुल्क ठीक होता है। आप लुबना, इस चीज़ ये का अपने फेल से डैनिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। क्या मैंने भी चीज़? बड़ा अरसा देखा कि यहाँ की भी वज़ीर आज़म बनते हैं, लेकिन यहाँ सियासी बात की जाती है। और हमारे मुल्क में भी वज़ीर आज़म बनते हैं, तो हम जो भी वज़ीर आज़म बनता है, वो उसके खिलाफ बातें लाज़मी होती हैं, मीडिया पे लिखी जाती हैं, कही जाती हैं। राय साहब हम क्या शख्सी परस्ती करते हैं। तो फिर जो भी स्टेट होता है कहाँ अभी होती है? स्टेट की तरफ हम तवज्जो ही नहीं राय देते। साहब मैं यहाँ आपको भी एक एग्जांपल दूं। अभी एक पिछले दिनों पाकिस्तान की कोई वो आए थे एक टाइम के लिए, वो जब इमरान खान की हुकूमत उल्टी थी, तो उस वक़्त उन्होंने ऐसे ओवरटेकर ना पता नहीं कितने अरसे के लिए वो वज़ीर-ए-आज़म रहे थे पाकिस्तान के। केयर क्या नाम टेकर, था? कितने ये क्या नाम था? आए हुए थे यहाँ पे, वो बलूचिस्तान काकड़ साहब थे। काकड़ साहब थे। अच्छा जी। मैं पीटीआई की हूँ, तो ज़ाहिर है मैं तो नहीं जाऊँगी ना उधर, क्योंकि उसमें उसका हुकूमत अ, उल्टने में हिस्सा था। मैंने तस्वीर में पीटीआई के लोगों को देखा है कि जी कुछ भी है, वज़ीर-ए-आज़म तो था ना। आप मुझे बताएँ, ये शख्सियत परस्ती नहीं तो और क्या है? आपकी जो आइडियोलॉजी है, जिसने आपकी किसी की भी पार्टी हो, पीटीओ, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, लेकिन नहीं वो एक चूँकि वज़ीर-ए-आज़म रहा था तो फ़ोटो खिंचवानी बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए इसका लुब-ए-लुबाब यही है कि जब डेनमार्क में आप कुछ चीज़ों के बारे में मैं किसी ज़माने में मैंने 1-2 आर्टिकल लिखे थे कि ग़ालिबन उस दिन मेरे वो आर्टिकल था बीटी में और था 1995 8 फरवरी। मेरा बेटा उसी दिन पैदा हुआ था, छोटे वाला। तो मैंने उसमें ये कहा था कि मैं ये देख रही हूँ आने वाले वक़्त में कि ये अगर हमने ये चीज़ें ना की तो मेरा शहर शिकागो बन जाएगा, जिस पे बड़ी ले-दे हुई थी। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी, ज़ाहिर है स्कूल टीचर हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, उनकी दिल की बात सुन क्यों नहीं पाकिस्तानी जो वो इसकी मज़म्मत करते? क्यों नहीं तुर्की इसकी मज़म्मत करते? क्यों नहीं अरबी इसकी मज़म्मत करे? जो उनकी कौमों में या उनकी ज़ुबान बोलने वालों में जो कि एक एक डेनिश सिस्टम को एक गलत तौर पे इस्तेमाल करने का अंसर मौजूद है। मतलब ये बात इसलिए तो नहीं, जो भी बात होती है रेसिस्ट इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह आलू छोले खाते हैं। आपको रेसिस्ट लफ्ज़ बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। आप हर एक को रेसिस्ट नहीं कह सकते। इस मतलब हर वो बंदा जो सही डिमांड करे, आपको सूट ना करे जी वो रेसिस्ट है, ऐसे नहीं है। तो जब तक जितने भी गैर मुल्की नसाद इलेक्शंस लड़ते हैं, वो अपनी पार्टियों में काम करें, अपने शोबों में काम करें। जैसे मुझे पता नहीं कल कौन पूछ रहा था कि ये कायम मकाम क्या होता है? तो मैंने हँस के ज़रा मैं अच्छे मूड में थी। मैं क्या कायम मकाम वो होता है जब जो मेंबर होता है जब वो आगे पीछे कहीं जाता है 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, एक आधी मीटिंग के लिए, तो आपको उस वहाँ पे हाज़िर होके उस बंदे की पसंद की हुई कमेटियों में काम करना पड़ता है। हो सकता है आपकी दिलचस्पी ना हो। जैसे कोई ट्रैफिक की उसमें बैठा है कमेटी में, आपको सेहत की कमेटी में दिलचस्पी है, तो वो एक जबरन आपको काम करना पड़ता है, अपनी चॉइस से नहीं करना पड़ता। इसको कायम काम कहते हैं। लुबना, तो आखिर में हमारे पास 1 डेढ़ मिनट है, आप क्या कहेंगी?
मैं क्या कहूँगी राय साहब, मैं तो कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि बार-बार, बार-बार, बार कि अपनी पार्टियों के अंदर ज़म हो जाओ, अपनी पार्टियों को टाइम दो। मैं सबको जो ख़ास करके जो है जो आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे कि अपने आप को पाकिस्तानियों में कैद मत करो। अपना इलेक्शन का कैंपेन जो नहीं है वो मुल्की बनाओ या जिधर आप खड़े हैं। सिर्फ पाकिस्तानियों में जी उसने उसकी हिमायत कर दी, उसने उसकी हिमायत कर दी। अपनी डैनिश सियासत में, अपनी डैनिश पार्टी में अपनी शिनाख्त पैदा करो और अपने आप को कहो ये शिनाख्त पैदा करो कि मेरी ये शिनाख्त इस जैसे कुछ सोशल डेमोक्रेट है, मेरी शिनाख्त ऐसे सोशल डेमोक्रेट है, मेरी शिनाख्त ऐसे रेडिकल है, मेरी शिनाख्त ऐसे इनिस लिस्ट है। ये कहना कि जी मैं पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करता हूँ, इसका कोई किसी ने तज्जिया नहीं किया कि कौन किसकी पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करता है या मैं मुसलमानों की करता हूँ, इसकी भी कोई करती हूँ या करता हूँ। ये बातें बचकाना है, इसको मत करो। अपने पार्टी के नज़रियात को आगे लेके जाओ, उसमें पार्टी के अंदर बैठ के बेहतरी की बात करो, पता चले कि आपने हिस्सा डाला है। ये मतलब मैं आपसे दावे के तौर पे कहती हूँ, जितने लोगों ने वोट दिए इसमें कम लोगों को पता है कि सोशल डेमोक्रेट के क्या ख़्यालात हैं या इनिस लिस्ट के क्या ख़्यालात हैं। लोगों ने ज़ाती नेटवर्क पे जो नहीं है, वो एक पगड़ी पहनाने की कोशिश की है जो कि कामयाब नहीं हो सकी और इस तरह कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अपनी शिनाख्त अपनी पार्टी के हवाले से करें। लुबना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। जी, थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।